once again to another episode of Spiritual Parenting. दोस्तों, बचपन जो होता है वो सबको प्यारा होता है। शायद ही कोई हो जो अपने बचपन को भूलना चाहे, लेकिन कुछ लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ज़रूरतों को अनदेखी कर दिया जाता है। ऐसा करने से बच्चों के कोमल मन पर गांठें पड़ने लगती हैं और स्पिरिचुअल साइंस का ये मानना है कि यही गांठें फिर आगे चलकर ब्लॉकेजेस के रूप में सामने आती हैं। क्या कर सकते हैं पेरेंट्स इन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए? किस तरह से इन ब्लॉकेजेस को प्यारे से बच्चों के मन से हटाया जा सकता है, यही आज हम जानेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो कि जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हैं हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी, वो भी जानी मानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, मिसेस पूर्वा जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वा। पूर्वा की 6 साल की बेटी है, जो कि जब इस दुनिया में आई थी तो पूरी तरह से हेल्दी थी, लेकिन बाद में उन्हें ब्रेन फीवर हुआ, जिसके बाद आज पूर्वा की बेटी उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि चाइल्ड ब्लॉकेजेस एक आम आदमी कैसे समझे, क्या होते हैं ब्लॉकेजेस? Actually, every child, when he or she is born into this world, they are like a gentle flower, highly vulnerable. Vulnerable from outside environment, any threat, any kind of damage, any kind of trauma, any bacteria, virus can attack. So many blockages, generally it starts from the emotional plane. If there is a stressful atmosphere in the family, and what happens is the child goes through all that stress at a deeper plane, emotional plane, emotional blockage, mental blockages, which can get physicalized as a physical illness. डॉक्टर लक्ष्मी, क्या ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि हम बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, जो प्राइमरी एसेंशियल नीड्स हैं बच्चों? Yes, actually when these needs are not met, these primary essential needs are not met, the child feels unloved, unsafe. So sometimes it can start from the mother's womb itself or birthing process itself. So we have to really ask her about this. Did you go through any emotional stress or anything during your pregnancy or after that? जब वो born हुई थी, she was the first child in the family, Okay. so Right. everybody was very happy. welcoming. So family की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था. Right. But she was very healthy till the age of 3.5 months. Okay. Very playful child, very happy child. But it is just that she got fever. And जब diagnose किया गया, hospital लेके Okay, जाया गया, तो the doctors told us कि उसको convulsions आ रहे थे. Okay. And she was then diagnosed with encephalitis. डॉक्टर लक्ष्मी, किस तरह के पेरेंट्स को जो एसेंशियल नीड्स हैं, प्राइमरी एसेंशियल नीड्स, उनका ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? Like for example, we have already discussed that initially first 2 years, the touch and the presence of the parents is very important. So some And, of the yeah, essential needs, needs. like love. Yeah. Primary essential need of every child is love from the parents, unconditional love. Second is the need to be recognized as a special and unique person, because every child is unrepeatable. They are in the universe, they are so unique, so special. And third point is safe feelings. Every parent need to give that kind of, transmit that kind of safe feelings, that they are safe in this family, they are welcomed. And every parent also need to respect this person, Right. validate their feelings, whatever they are. बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम पूर्वा से और बात करें, आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है पूर्वा का अपनी बेटी के बारे में। जब पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी. शी वॉज अ नॉर्मल बेबी, वेरी हेल्दी बेबी. 3.5 महीने की उम्र में
इसको डीपीटी का सेकंड डोज लगा था। उसके बाद 3 दिन के बाद जब लगातार बच्चा रोता रहा तो वी टुक हर टू द हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके पता लगा कि वायरस ने इनका ब्रेन अफेक्ट कर दिया था। जैसे कि बाहर लेके उसको घुमाने लेके जाते हैं, गार्डन में लेके जाते हैं, उसको मार्केट भी लेके जाते हैं ताकि वो डिफरेंट चीज़ें देख सके। इवन पार्टीज़ में भी लेके जाते हैं ताकि कभी ऐसा महसूस नहीं कराते कि भाई क्योंकि वो स्पेशल है तो उसको बाकी लोग क्या सोचेंगे। बच्चा अब पूरी तरह से डिपेंडेंट है, कुछ अपने आप से नहीं कर पाती है, कुछ बोल नहीं पाती और समझती जबकि सब है। बोलती तो है नहीं पर हंसती है, मेरी बात मैं आवाज़ देता हूँ तो हंसती है। बस उसके साथ खेलता भी बहुत हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ अपने बिजी वक्त से भी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर मुमकिन इलाज करने की। वो सब होने के बाद इसका रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत बढ़ गया। अब शी इज़ अ वेरी प्लेफुल चाइल्ड, स्माइल्स, रेसिप्रोकेट्स, पहचानती है कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को उनके साथ खेलने की चाह होती है, कार्टून्स देखती है टीवी पे, टॉयज़ को एंजॉय करती है। खासकर ये देखा है मैंने कि सबसे ज़्यादा ये बच्चे उसके अगर आसपास हों तो बहुत खुश होती है। इवन जो टॉयज़ हैं वो इसको इतने अट्रैक्ट नहीं करते जितने बच्चे आसपास खेलते हुए उसको अट्रैक्ट करते हैं। आज तक हमारे साथ है, खेल रही है, हंस रही है, हमें पहचानती है, वही थॉट सबसे ज़्यादा खुशी देता है। एंड we enjoy what we have in hand rather than cry on what we do not. So that is the positive attitude that we live on with. डॉक्टर न्यूटन, पूर्वा कहती हैं कि फिजिकली काफ़ी रेस्ट्रेन्ड है उनकी Yes. बेटी, लेकिन साइकोलॉजिकल चेंजेस आज सच कुछ नहीं हुए हैं। Yes, there are actually the child is intelligent and normal like any other child. Very intelligent, Yes. can understand, cannot speak but understands. Yeah. And खेलती है पूरा दिन ड्राइंग टॉयज़ के साथ, ऑब्वियसली विद सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ पीपल। ड्राइंग करती है, Very good. खुश रहती है, कोई भी फैमिली मेम्बर आता है उसको स्माइल देकर ग्रीट करती है। So, Dr. Newton, after the parents they realize the blockages of their Yes. children, how can they, tackle those blockages and how can they treat those blockages? Yes, every parent can really dissolve those blockages that are already present in their children by first diagnosing that there is a block and what level is it, mental, emotional, and from where it is coming from, then working at the root level. At the root level, if you extend your love and compassion and kindness and also meditation, parents need to meditate. Sometimes we don't think that we have some problem and our own blocks are there and we don't realize it, and we think that we are giving such a beautiful parenting to a child, but we may not. तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी बता रहे हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एफर्मेशन भेजना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों तक, और गाइडेड मेडिटेशन डॉक्टर न्यूटन कितना हेल्प कर सकता है पूर्वा की। Yes, Pooja can now understand through her own meditation how she can help her own child now. तो एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर न्यूटन पूर्वा को आपके सामने गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, जिसके बाद पूर्वा को हमें पूरी उम्मीद है कि एक सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा जिसके थ्रू वो अपने बेटी को ट्रीट कर सकती हैं। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक।